Of this also. It would be very interesting to figure out how ad campaigns are developed. What is the modalities that are associated with it? You see, at the very outset, it should be very clear if the advertiser so likes, they could develop their own ad campaign. They may have a full-fledged advertising department and they could develop and execute the ad campaign if they so like. But now that it has been realized that it is out and out uh, a specialized job, it is not everyone's cup of tea that anybody and everybody would come up with effective ad campaign. It requires a hell of a creativity and a concerted and meticulous planning. You cannot consider any Tom, Dick, or Harry, or you cannot carry out the campaign yourself. It requires expertise, it requires more of talent. And if your campaigns are not effective, you are not going to lose a huge amount of money, but also your reputation, your goodwill, your face, your image will go for a nosedive if your ad campaigns are not very effective. A poor campaign may dilute your corporate image in one go. एक बार में ही पूरा का पूरा जो आपका corporate image है, that will go for a nosedive. There will be a dilution. People perhaps may be very skeptical about your way of carrying out the business. तो ऐसे situation में how can we make ourselves so sure that our campaigns are very effective? तो एक तो है कि आप खुद करना चाहें आप कर सकते हैं, no issues. What is the most prevalent way of advertising today is you approach an ad agency, and here enters an ad agency to help you out as far as the ad campaign is concerned. You see, earlier in 1861, when the first ad agency was set up in Philadelphia by Volney B. Palmer, he was a media broker. Try to understand each and every trace of the developments. Volney started selling the space in newspaper to the advertisers, and then came the first agency into existence. They were not supposed to prepare the ad copy for you. They were not supposed to develop the content. No, 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 not at all. They were only concerned in selling the space, and that too from the newspapers. That was their concern. So they used to buy their space from the newspapers, and for a commission, they used to sell to the uh, advertisers. Media used to pay commission for that. Still, this practice is very much rampant. अभी भी यही practice है. Media still pays the commission to the agency because it is the agency that buys the space or time from the media. So on the purchase of a space or time in the media house still pays commission to the ad agencies. So earlier they started just by selling a space in the newspapers. It was a latter day development that they also started uh, offering creative contents. They started writing copies. Earlier they simply used to write, no pictures, no illustration, कुछ भी नहीं था, केवल आपको लिखना होता था. So they started helping out. They started helping the advertiser in preparing the ad copy. इसीलिए अभी भी नाम कॉपी बोलते हैं उसको. कॉपी का पहले मतलब होता था ऑल द रिटन स्टफ इन द एडवर्टीजमेंट्स, क्योंकि उस समय केवल लिखा ही जाता था और कुछ नहीं, नो पिक्चर्स इन द एडवर्टीजमेंट. धीरे धीरे क्या हुआ ना, दे स्टार्टेड ऑफरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्रिएटिव इनपुट. दे स्टार्टेड टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड होने लगा. They started using pictures, models, diagrams,
more and more visuals in the advertisement. Things changed. Now the agencies took over the creative part as well. They become a house which could render all sorts of creative services in addition to the media buying and media planning. So now you find the entire ad campaign which is being looked after by an ad agency. पहले ऐसा नहीं था. पहले केवल मीडिया का स्पेस चाहिए, आप एजेंसी को अप्रोच कीजिए, they will sell the space. Simple. Now the entire package, पूरा का पूरा एड कैंपेन वो आपके लिए तैयार करेंगे. लेकिन हर एक एजेंसी ऐसा नहीं होता है. माइंडेड ऐसे एड एजेंसीज जो पूरा का पूरा सर्विस आपको देने वाली हैं, एंड यू डू नॉट हैव टू बॉदर फॉर एनीथिंग एल्स. दे विल टेक चार्ज ऑफ द इंटायर कैंपेन ऑफ योर्स. सारा का सारा कैंपेन वो आपका लुक आफ्टर करने वाले हैं. ऐसे एजेंसीज को बोलते हैं फुल सर्विस एड एजेंसीज. Full service ad agencies are those which could render the entire range of services that you ask for. आपको जो चाहिए, everything available under one roof. एक ही छत के नीचे सारा कुछ आपको जो चाहिए मिलेगा. एड कॉपी डेवलप करना है, मीडिया प्लानिंग करना है, कुछ भी, you will be getting all sorts of advertising services. क्योंकि एक तो हो गया फुल सर्विस, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुटीक. और बुटीक में आपको मिलेगा a few specialized services. You will not getting the complete range of services. Complete range of advertising services आपको मिलने वाला है केवल full service ad agencies में, because they have got separate departments to look after the various specialized tasks. हर एक डिपार्टमेंट उनके पास है. अकाउंट सर्विस डिपार्टमेंट है, इनका नाम याद रखिएगा. अकाउंट सर्विस डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मीडिया डिपार्टमेंट है. मीडिया प्लानिंग भी ये लोग करते हैं. एड कॉपी बनाएंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एड कॉपी डेवलप करेंगे क्रिएटिव डिपार्टमेंट, और कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करेंगे द क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट. दीज आर द हार्ड कोर डिपार्टमेंट्स. इन डिपार्टमेंट का नाम याद रखिएगा. क्लाइंट सर्विस, क्रिएटिव, प्रोडक्शन एंड मीडिया. ये चार जो है ना एकदम हार्ड कोर डिपार्टमेंट्स है. बाकी सब डिपार्टमेंट तो होंगे ही, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिनेंस एंड अकाउंट्स, पब्लिक रिलेशन और वट एवर. सो दीज आर द कोर डिपार्टमेंट्स. अच्छा, एनीबडी हु कुड टेल मी विच ऑफ द डिपार्टमेंट इज द हॉलमार्क? किसी एजेंसी की पहचान किस डिपार्टमेंट से होता है? Which department do you consider to be the most important one out of the four that I have just mentioned? Yes, anybody? You can give the wrong answers if you don't know, but speak out. आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा हार्ट एंड सोल कौन सा डिपार्टमेंट होगा? क्रिएटिव डिपार्टमेंट. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. क्रिएटिव डिपार्टमेंट. क्रिएटिव डिपार्टमेंट इज द हॉलमार्क. यही पहचान है किसी भी एड एजेंसी का. यहाँ जो लोग हैं, द क्रिएटिव हेड इज द फेस ऑफ द एड एजेंसी. एजेंसी का चेहरा होते हैं ये लोग. दे आर द सिग्नेचर ट्यून. मैकन एरिक्सन जो एजेंसी है वो जाना जाता है पीयूष जोशी के नाम से, सॉरी प्रसून जोशी के नाम से. प्रसून जोशी हैपेंस टू बी द क्रिएटिव हेड. Piyush Pandey, Ogilvy and Mather, the number one ad agency in India today. तो Ogilvy को आप कैसे जानते हैं? The moment you hear the word Ogilvy, Piyush Pandey comes into mind. The man with a mustache and the man who loves to wear hats. कभी देखिएगा, they have become the legend. They have come up with a series of successful ad campaigns, and such campaigns have even won Lions Award at the Cannes Festival. Cannes Festival is a annual event in which they figure out the best ad campaign across the world, and India has started making its mark. ठंडा मतलब कोका कोला याद है ना?
आमिर खान वाला जो कैंपेन था, दैट वाज द फर्स्ट विच वन द एक्कोलेड। पहली बार रिकॉग्निशन इतना ग्लोबल लेवल पर मिला था उस एड को। एंड वी हैव स्टार्टेड मेकिंग मार्क। पहले होता था ना कि वी यूज टू कॉपी, हम लोग चुराते थे कंटेंट को भी। यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वैसा ओरिएंटेशन ही नहीं था। नाउ वी हैव स्टार्टेड मेकिंग आवर प्रेजेंस फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर नॉट लैगिंग बिहाइंड। क्रिएटिविटी की कमी तो वैसे भी इंडियंस में नहीं होती है। दे कुड थिंक बियॉन्ड व्हाट अदर्स कुड। सो एक बात निश्चित है कि आपके पास ये चारों डिपार्टमेंट हैं, दे वर्क इन यूनिजन, और ये सारों मिलकर काम करती हैं किसी एड कैंपेन पर। अब देखिए कैसे कहानी शुरू होगी। एड एजेंसी में जो क्लाइंट सर्विस डिपार्टमेंट है, वहाँ आपको मिलेंगे बहुत सारे पोजीशंस। यू विल फाइंड अकाउंट डायरेक्टर, यू विल फाइंड अकाउंट सुपरवाइजर, और वहाँ मिलेगा आपको अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अकाउंट एग्जीक्यूटिव ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट एग्जीक्यूटिव इज द वन हु मेंटेन्स अ लिंक विथ द क्लाइंट। क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना, क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन समझना, क्लाइंट से इंटरेक्ट करना, क्लाइंट से जो डीलिंग होता है सब कुछ इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, इट इज द अकाउंट एग्जीक्यूटिव दैट इज गोइंग टू कैरी आउट ऑल दीज टास्क। तो ये पोजीशन याद रखिएगा, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अकाउंट एग्जीक्यूटिव इज द लिंक बिटवीन द क्लाइंट एंड द एड एजेंसी, एंड दे आर द वन हु इंटरेक्ट्स विद द क्लाइंट। अगर कोई ग्रीवेंस है, the account service department is to be blamed, और सबसे जो होता है एक्स विल फॉल ऑन अकाउंट एग्जीक्यूटिव। कौन उस अकाउंट को देख रहा था, एंड दे विल बी कॉल्ड अपॉन। अब देखिए कैसे पूरा कहानी शुरू होती है। ईदर वेज अकाउंट एग्जीक्यूटिव along with his team would visit the prospective client, और वहां जाकर उनको प्रेजेंटेशन देंगे, दैट इज कॉल्ड पिचिंग। उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि यस यू शुड कंसिडर आवर एजेंसी फॉर योर बिजनेस, नेक्स्ट कैंपेन आप हमें दें। और वो अपना जो पास्ट वर्क है वो शोकेस करेंगे, वो दिखाएंगे उनको व्हाट सक्सेसफुल एड कैंपेन वी हैव हैड इन द पास्ट, हमारे क्लाइंट हैं कौन कौन। यानी उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वी कैन डू अ बेटर जॉब गिवन अ चांस, सो प्लीज कंसिडर अस, एंड if possible please give us the campaign। या फिर इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है, an advertiser might approach an agency for the ad campaign। जैसे ओगिलवी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, clients visit them, राइट, डिपेंडिंग ऑन कौन किसके पास अप्रोच करता है, लेकिन इंटरेक्शन होगा क्लाइंट एंड एजेंसी का। अच्छा, मान लीजिए द टू हैव अग्रीड टू वर्क ऑन अ कैंपेन, नाउ व्हाट। एजेंसी और क्लाइंट के बीच ये एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, वी आर लुकिंग योर नेक्स्ट कैंपेन, फाइन। नाउ कहानी यहां से अब स्टार्ट होगी। इनका सबसे पहला फॉर्मल मीटिंग होने वाला है, द क्लाइंट एंड द अकाउंट सर्विस विथ हिज टीम। इस मीटिंग में द account executive will try to figure out the expectation of the client from the campaign. What do you expect from the campaign, right? So they will simply jot down what is the expectation of the client from the campaign. What do you expect from the campaign? Are you up to increasing the level of the awareness amongst the target customers? Are you there to overcome a misunderstanding that has developed these days, or you are hell-bent upon increasing the sale of the product only? Whatever your priority that might be, this has to be discussed with the account service department headed by this account executive. इस ये पूरा expectation जो है, they jot down, they write it,
and that document is called that account is called brief. ये term याद रखिएगा, brief. Brief is a document that embodies the expectations of the client regarding the ad campaign. इसको लिखिएगा, brief is the, इसको हम लोग अकाउंट ब्रीफ भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद क्रिएटिव ब्रीफ भी हो जाएगा। फिर अकाउंट ब्रीफ, इन शॉर्ट इसको ब्रीफिंग कहते हैं। A brief is a document that contains a document that embodies the expectations of the client from the ad campaign. Expectations of the client from the ad campaign. What do you expect from the campaign? Now we have to develop a write-up. We have to write these down. वो केवल हम समझ के नहीं आएंगे. We have to write down explicitly. What do you want? और इसी, that is the first document. इसी document को forward किया जाएगा creative department को. Creative department will be called upon and उनको बताया जाएगा, look, this is it. हालांकि उस मीटिंग में क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर you see, ad agency is a out and out a teamwork. यहाँ कोई अलग अलग काम नहीं करता है. They gel together very easily. अब देखिएगा वहाँ एक टीम बनाएंगे भी in order to develop an ad campaign. So the creative department will be handed over the brief. Look, this is what the client expect. अब इनका जो creative department है, that will become active. And as you have rightly pointed out, this is the heart and soul of any ad agency. सबसे important department है किसी भी एजेंसी का, बाकी सब support role में है. सभी के टीम एफर्ट से ही पूरा सक्सेसफुल कैंपेन हो सकता है obviously, लेकिन all the other department will be playing a supportive role. जो lead role है ना, that will be taken up by the creative department. अब देखिए कैसे काम होगा. In order to serve an account बोलते हैं क्लाइंट को, एडवर्टाइजर को, स्पॉन्सर को, अलग अलग नाम है एक ही के लिए. In order to attend to an account होता है जो आपका existing customer है, existing client है, उसको हम लोग अकाउंट, look, मेरे अकाउंट हैं कौन कौन, कोका कोला, मे बी फेयर एंड लवली, मे बी वॉट एवर. तो आप अकाउंट का नाम गिना रहे हैं जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं ये लोग. So in order to serve the client better, a team is formed. एक टीम कंस्टिट्यूट किया जाता है और इस टीम में देखिए होगा कौन कौन. ऑन द वंस यू हैव रिसीव्ड द ब्रीफ, जब आपको ब्रीफ मिल गया है उसके बाद की बात हो रही है. अलग अलग क्लाइंट के अलग अलग ब्रीफ तैयार होगा, उनका क्या ब्रीफ है, उनका क्या ब्रीफ, व्हाटएवर. तो हर एक ब्रीफ के लिए वी विल बी कंस्टिट्यूटिंग अ क्रिएटिव टीम टू वर्क ऑन दैट ब्रीफ. इंफॉर्मेशन इनपुट जब मिल चुका है मुझे कि क्या एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट का, उसके बाद हम लोग एक क्रिएटिव ब्रीफ तैयार कर रहे हैं. हो चुका है इनफैक्ट, एंड दैट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द क्रिएटिव डिपार्टमेंट एंड द क्रिएटिव डिपार्टमेंट हैज फॉर्म्ड अ क्रिएटिव टीम टू वर्क ऑन इट. नाउ यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स होने वाले हैं. यहाँ पर इस टीम में आपको एक रोल मिलेगा विजुअलाइजर. ये सब टर्म याद लिखते रहिएगा. विजुअलाइजर कौन? विजुअलाइजर is the one who would conceptualize a creative theme, idea, जो figure out करेगा what we are going to work on. क्या सिचुएशन होगा हमारे एडवर्टीजमेंट में, whether it will be a teacher giving a lecture, whether it will be a mother telling a daughter, क्या सीन होगा वहां पर, what, और थीम क्या होगा, what will be the theme of the advertisement.
whether to save the resources, whether to economize, whether quality concern, what. So visualizer is the one who would be conceptualizing an idea for the campaign. कहानी आइडिया से शुरू होती है, माइंड इट. अच्छा, ये आइडिया किसी का प्रेरोगेटिव नहीं है कि भाई ये हमारे विजुअलाइजर हैं, यही आइडिया देंगे. पूरा टीम एक साथ काम करेगा. मान लो क्रिएटिव आइडिया है कॉपी राइटर के दिमाग में, वो शेयर करेगा, भाई हम लोग इस पर काम कर सकते हैं क्या, आई थिंक दैट विल परहैप्स बी गुड इनफ. फाइनल अप्रूवल देगा विजुअलाइजर. द विजुअलाइजर मे बी कन्विंस, यस 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 यू हैव गॉट अ बेटर आइडिया. तो वो जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, दैट इज विजुअलाइजर. अब विजुअलाइजर के ही दिमाग में एक ग्रैंड प्लान हो, या किसी दूसरे से भी उसने, क्योंकि ये टीम वर्क है. एक पोजीशन है विजुअलाइजर का, और विजुअलाइजर है द वन हु इज रिक्वायर्ड टू कम अप विथ अ क्रिएटिव आइडिया सो दैट द फर्दर प्रोग्रेस रिगार्डिंग द एड कुड बी मेड. ठीक है. सेकंड, उसमें आएगा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड कॉपी राइटर. कॉपी राइटर जो है, they will be deciding each and every word that will be written in the advertisement. एड में जो सारी बातें लिखी जानी है, माइंड द वर्ड, रिटन वर्ड्स, वो कभी विजुअल्स पर कुछ नहीं करेगा. दे आर वर्ड स्मिथ्स. ये लोग लिटरेचर के लोग होते हैं प्रेफरेबली. इनका अच्छा खासा ग्रिप होता है लैंग्वेज पे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, व्हाटएवर, जिस लैंग्वेज में लिखी जानी है कॉपी, बॉडी कॉपी. अच्छा, एडवर्टीजमेंट में, अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आपको दिखाएंगे भी. बहुत सारा एलिमेंट्स मिलेगा आपको जहां लिखना होता है. स्टार्टिंग विद हेडलाइन. हेडलाइन एड में देखिएगा, देयर इज अ हेडलाइन. यू विल कम अक्रॉस सब हेड, जिसको किकर बोलते हैं अगर वो हेडलाइन के ऊपर में लिखा जाएगा तो. बॉडी कॉपी जो डिस्क्राइब करेगा प्रोडक्ट्स के बारे में एंड गिविंग यू द डिटेल्स. स्लोगन, पंच लाइन, टैग लाइन, सभी लिखी जाने वाली चीजें हैं. ये सब क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे इन अनदर क्लास. सारी की सारी लिखने वाली चीजें हैं, सबको लिखना होगा. क्लोजिंग आइडिया, राइट, मे बी ऑल दीज स्टेप्स. और दूसरा जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं इलस्ट्रेशन. तो पूरे के पूरे कंटेंट को एडवर्टीजमेंट में हम लोग एक तो वर्बल कंपोनेंट में डालेंगे, जहां कॉपीराइट जो सब कुछ आएगा वर्बल में, हेडलाइंस, सब हेड, बॉडी कॉपी, स्लोगन, पंच लाइन, टैग लाइन, क्लोजिंग आइडिया, व्हाटएवर. और दूसरा जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी इलस्ट्रेशन, जो नॉन वर्बल होगा, वहां कोई लिखना नहीं होगा. इट मे बी a diagram, it may be the model, it may be a picture showing something, whatever. Non verbal component. तो दो पार्ट में बट गया. जो नॉन वर्बल पार्ट होगा दैट विल बी लुक्ड आफ्टर बाय आर्ट डायरेक्टर. ये आर्ट डायरेक्टर वहां एक होंगे who will decide कि how what situation are going to be projected. Then you have a layout artist. ये लेआउट आर्टिस्ट कौन? लेआउट आर्टिस्ट का काम होगा कि एडवर्टीजमेंट में जो सारे कंपोनेंट्स है उसका जगह कहां होगा, वेयर टू पोजीशन व्हाट वेरियस एलिमेंट्स. जैसे मान लीजिए हेडलाइन, हम लोग हेडलाइन कहां रखेंगे. सपोज ये जो स्क्रीन है लैपटॉप का, इतना स्पेस आपको मिला हुआ है, हमारा हेडलाइन कहां होगा, एकदम सामने, इधर, कोना, किधर. बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज आउट एंड आउट अ क्रिएटिव फील्ड. आप ऐसा नहीं कह सकते ओ हेडलाइन है तो सबसे ऊपर रहेगा, यहां पर रहेगा, एकदम मिडिल में रहेगा. नो, तो हर एक एडवर्टीजमेंट आपको एक ही जैसा दिखने लगेगा. हम हेडलाइन रखें भी कि नहीं रखें मेरी मर्जी, बस हम इतना चाहते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट इतना इफेक्टिव हो कि इट इज नोटिस्ड एंड इट प्रोवोक्स पीपल टू बाय द प्रोडक्ट.
मुझे आपसे और बहुत कुछ उम्मीदें नहीं रखी हैं, कहाँ क्यों रखा, प्रिंसिपल्स का वायोलेशन धड़ल्ले से होगा यहाँ पर, हालांकि नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स आर देयर एडवर्टाइजिंग में, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ दिस दैट व्हाटएवर, doesn't matter, give me the result, no matter, even if you have violated the principles, we don't care, we are hell bent upon results. प्रिंसिपल आपके फायदे के लिए, प्रिंसिपल आपको सेंस ऑफ डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए, अगर आप बैलेंस करें, सिमेट्री रखें तो शायद बेहतर लगेगा, फाइनल डिसीजन इज दैट ऑफ योर्स। अब देखिएगा वहां भी देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स, एक होता है सर्कस लेआउट जहां पे आप जैसा मन वैसा रखिए, नो इश्यूज, बस मुझे इतना आप इंश्योर कर लें कि वॉट एवर द एड ऑब्जेक्टिव हैज बीन सेट दैट इज अचीव्ड। जब आप एड कैंपेन पर काम शुरू करते हैं ना, वी कंसिडर 5 M's ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये भी याद रखिएगा, 5 M's हम लोग पता नहीं कल शायद डिस्कस करें। 5 M's का मतलब है, नंबर 1 मिशन, द फर्स्ट M इज मिशन, और मिशन का मतलब है ऑब्जेक्टिव, एड ऑब्जेक्टिव which could be set either in communication terms or sales terms. Mission refers to ad objective which could be set either in communication terms or sales terms to increase the awareness from 20 to 40%. Is a communication, the objective has been set in communication terms, लेकिन sales के terms में भी objective set करते हैं to increase the sale by 20% or whatever, right? Second M is money, कितना पैसा है, how much can you afford to spend on ad campaign, ad budget. Second M is money, money is the ad budget, how much do you intend to spend on ad campaign, उसी हिसाब से बाकी सब डिसीजन लिया जाएगा। And if you spend less, the campaign is going to be worthless. If you could arrange the fund, then only you could consider advertising, otherwise छोड़ दीजिए, don't go for it. Sporadic, कहीं कभी ad आ जाएगा तो उससे बात बनेगी नहीं, this is not going to serve any purpose. ad रखना है या नहीं रखना है, you have to make the final decision depending upon how much you could afford to spend. If you cannot afford to spend more, and that what is required, forget it, we can figure out some other ways out to communicate. Advertising is an expensive affair, अगर आपके पास उतना पैसा है then only you can step into it, otherwise just forget it, right? So make sure कि the purpose is served, you have enough of funds. Second M was money. Third was message, we will discuss that, कैसे मैसेज डेवलप होता है, यहीं पर क्रिएटिव टीम काम करने वाली है। Each and every stimulation that you come across in the advertisement, maybe headline, body copy, slogan, punchline, whatever, every inclusion in the advertisement copy is out and out a job of the creative department. The message, very important one. क्या टोन होगा, क्या टेक्सचर होगा, maybe what the theme, the content, what the message would be, how the message is to be delivered, ये सारा काम मैसेज पार्ट का है, और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मीडिया यूज कर रहे हैं, बिकॉज द नेक्स्ट इज मीडिया, द फोर्थ M इज मीडिया, विच मीडिया विल कैरी द एडवर्टीजमेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। If your media selection is not up to the mark, your message will end up reaching to somebody who is not our target customers. So we have missed the bus. Sara campaign was a disaster. क्यों? Because our message was misdirected. जाना था जापान, पहुंच गए चीन, वहां मुझे जाना नहीं था। We have to hit our target customers with the best possible of impact. देखिएगा मीडिया हम लोग आगे जब डिस्कस करेंगे, you will come across the priorities of the campaign planner in terms of reach, frequency, cost
and impact. We attempt to maximize the reach of the advertisement, frequency of the advertisement, the more the better. इस पर भी एक कंट्रोवर्सी होगा. क्रुगमैन का थ्योरी आगे पढ़िएगा. क्रुगमैन सेज कि नहीं, जस्ट 3 हिट इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद एवरी हिट इज अ नॉनसेंस, इट इज अ वेस्ट. कैसे, वी विल डिस्कस. Impact, how much would be how much the ad would be impactful? What will be the impact? Don't you think that advertisement in television is far more impactful as compared to the same advertisement in the print media or a pamphlet? अगर आपको पैम्पलेट पे वही एड मिलता है तो आप उसको देखते भी नहीं है. कोई सर्कुलेट कर रहा था खड़े होकर, आपने उसको देखा भी नहीं, आपने उसको लिया जरूर लेकिन आपने पढ़ा भी नहीं. तो मीडिया का इम्पैक्ट अलग अलग होने वाला है. आजकल देखिए सोशल मीडिया इज सो इम्पोर्टेंट. वहाँ वी यूज द टर्म बज एडवर्टाइजिंग. नहीं, buzz advertising is a catchword these days. More and more ad budget is being diverted to social media. बहुत सीचिंग आ रहा है. पूरा पूरा का पूरा जो मार्केटिंग इज अंडरगोइंग अ ड्रास्टिक चेंज. And the last one was measurement. The fifth M was measurement, and measurement is concerned about evaluation, how effective the campaign was. तो ये पांचों M याद रखिएगा. क्या क्या? मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया and measurement. And measurement was all about assessing the success of the ad campaign regarding its achievement of the goal. Have the goals been achieved, and if yes, to what extent, and if not, then what went wrong? Because we are not going to repeat the same mistake time and again. It will be a foolhardy approach on our part. अगर आप वही गलतियां बार बार कर रहे हैं तो you are the one who are required to learn the lessons pretty well. So ये 5M. अब देखिए क्या हुआ. Visualizer came up with a grand idea. Copywriter will decide the written part. Art director will decide the illustration. Layout artist will decide how the different elements of the advertisement will be arranged. Headline कहाँ होगा, body copy कहाँ लिखना है, illustration कहाँ पर हम लोग डालेंगे, logo कहाँ डालना है, डालना भी है कि नहीं डालना है. अच्छा, अगर आप सभी के सारे एलिमेंट अगर एड में डालना चाहेंगे, it will be a overcrowded space. It will be far more distracting. We are here to ensure that you notice our advertisement. आप तो वहाँ डिस्ट्रैक्टेड होने लगे, आप तो देखेंगे नहीं क्योंकि क्राउड हो गया. अगर आपको एक लेट मी टेल यू अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड. पता नहीं आपने देखा भी होगा, शायद नोटिस किया होगा. मे बी 4 or 5 years back, सुनील मित्तल की जो कंपनी है, मित्तल ग्रुप्स, they came up with an advertisement. और इन्होंने किया क्या था उस एड. अभी लोग उसको याद करते हैं, बेंचमार्क मानते हैं. क्यों? उस एड कैंपेन में पूरा का पूरा जो कवर, अब तो कवर पेज ऐड होता है, देखा है ना, न्यूज़पेपर के ऊपर एक कवर होगा, उसमें पूरा एडवर्टाइजमेंट ही होगा. उसके बाद खोलने के बाद फिर न्यूज़पेपर निकलता है नीचे से, कवर पेज एडवर्टाइजमेंट. तो पूरा का पूरा एड खरीद लिया उसने. कितना एक्सपेंसिव हुआ, यू कैन फिगर आउट. पूरा का पूरा फ्रंट पेज खरीदा गया. अब तो फ्रंट बैक दोनों खरीद लेते हैं. एंड कितना एक्सपेंसिव है आज का कैंपेन, यू कैन जस्ट मेक आउट. अच्छा, खरीदा पूरा स्पेस, गुड. तो पूरा लिखिए आप, आपका पूरा स्पेस है, जो कहना है कहिए. यू हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड. लेकिन इस एजेंसी ने किया क्या, पूरा का पूरा स्पेस खाली रखा है, एकदम वाइट. वहां पर आप अपना लिख सकते हैं जो भी रफ वर्क, पूरा का पूरा. आप वहां न्यूज़पेपर वाले का हिसाब, दूध का हिसाब और क्या क्या हिसाब से पूरा भर सकते हैं. पूरा का पूरा एक पूरा शीट ही आपको ब्लैक मिल रहा है, व्हाइट शीट. और जो पूरा स्पेस खाली रखा और बीच में एकदम सेंटर में एक स्टैम्प साइज फोटो लगाया, एकदम स्टैम्प साइज, एकदम पोस्टल स्टैम्प होता है ना, और उसमें केवल
3 उनका दिख रहा था चिमनीज, बस। अब समझिए ना, पोस्टल जितना छोटा सा, पासपोर्ट साइज से भी छोटा था वो, और उसमें 3 चिमनीज दिख रहा था और कुछ नहीं, खत्म। और नीचे लिखा था आर्सेनल मित्तल, आर्सेनल से उसने टेक ओवर किया था, मतलब दे अक्वायर्ड आर्सेनल, आर्सेनल मित्तल। और फिर उनका जो पंच लाइन था, वट एवर वी मेक स्टील्स, पूरा का पूरा स्पेस ये एक लाइन नीचे में और एक छोटा सा फोटोग्राफ बीच में, एंड दे पेड थ्रू देयर नोज, इतना ज्यादा खर्चा हुआ। लेकिन ये याद रहा लोगों को, हाउ टू बी गेट नोटिस्ड, दैट इज द मेजर इशू। आज के डेट में इतना सारा एडवर्टीजमेंट है ना कि लोगों को एड नोटिस करना इज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर द एड एजेंसीज। देयरफॉर वी यूज द वर्ड कटिंग द क्लटर, ये फ्रेज याद रखिएगा, कटिंग द क्लटर। क्लटर होता है एक बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड, भीड़, एंटिटी। उस डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एंटिटीज के बीच में मेरा एडवर्टीजमेंट कैसे नोटिस हो, नाउ दैट इज द बिगेस्ट इशू, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो आपको इस कटर को काटना होगा। आई हैव टू इंश्योर दैट माई एडवर्टीजमेंट इज टेकन नोटिस ऑफ। यहीं पर क्रिएटिव डिपार्टमेंट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू, दे हैव द एक्सपर्टीज। अगर कोई सेंसिबल एड एजेंसी